कि वी प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम 0 एज टू 0 एज, चाहे वो माइग्रेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, चाहे किसी किस्म की उनको नीड है, किसी प्रकार की नीड है, चाहे हाउसिंग की है या सोशल कोई भी नीड है, वी मीट दैट। हमारा फैमिली वायलेंस ट्रस्ट भी है। Hey fellow dreamers, my name is Rachit and welcome to Behind the Dream Show. Our goal with this online series is to introduce you with the real stories and advice from successful immigrants living in New Zealand and help you build a successful career on your terms. So today's episode is a bit different from other ones. While we are going through this global pandemic, we came across this support trust in Auckland that has helped so many community members during their challenging times. And we generally thought it is really important for Indian immigrants to know about this support trust so they could have a helping hand in their difficult times. Also, one of the reasons I'm excited about this episode because I got a chance to talk to Mr. Jeet Suchdev. Mr. Jeet is the chairperson of Bhartiya Samaj Charitable Trust and he is a well-known personality in the field of community work. He has received Queen's Service Medal, Hind Rattan Award, Bharat Gaurav Award, and he was also honored with the New Zealand India Most Influential for the year of 2018 and 2019. I mean, just talking to Mr. Jeet was a great learning lesson. The wisdom he has shared is invaluable, and he has given a great outlook on the evolution of immigrants in New Zealand from the 1980s to the current times, which was really interesting to know. We talked about what are the free services available for Indians in New Zealand, how you can avail these services, and what is the eligibility criteria. And we also talked about the story of Mr. Jeet Suchdev, where he shared why he chose to become a social worker, even though he was running a successful business in the hospitality industry. So my suggestion would be make sure you watch the whole episode because people like us don't usually get a chance to listen to these kind of wise words every day. So you know the deal. Make sure you give a thumbs up, share it with your friends, and enjoy the video. Welcome to Behind the Dream Show, Jeet. Great pleasure. Yeah, appreciate you joining us today. So, Jeet, you have been so successful in whatever initiative you have taken to help the migrants, and you're a recognized name in our community. You're helping migrants, you're helping senior citizens. And how long have you been in the country? I'm here for the last 34 years. So you've lived as an immigrant for such a long time. What would you say if I ask, what would be the advantages and disadvantages अगर कोई यहाँ पर रह रहा है पिछले 20 साल से और कोई यहाँ पर आता है लास्ट 1 या 2 साल में ही, तो what would be the advantages for this person? देखिए, सबसे पहले मैं एडवांटेज की बात करता हूँ कि एडवांटेजेस आर कि भाई दैट यू आर इन अ लवली कंट्री, पीसफुल कंट्री एंड अवे फ्रॉम ऑल द नास्टीज, चीज़ों से दूर है। ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, खूबसूरत है और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। सबसे बड़ी डिसएडवांटेज जो देख रहा हूँ कि जो हम लोग पहले आए हैं, वी आर वेल सेटल्ड, और लेकिन जो अभी आए हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट सेटल्ड। वो क्या होता है कि जैसे वी केम एंड वी बॉट ए हाउस बहुत इजीली हम लोगों ने खरीद लिया एंड वी हैव बीन एबल टू पे द मॉर्गेज वेरी इजीली। द अमाउंट ऑफ द मनी वी इन्वेस्टेड एट दैट टाइम वाज वेरी लिटिल। एट द मोमेंट अगर कोई आता है हमारे पास आ गया इस कंट्री में, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी जद्दोजहद है। तो पहले तो आपको पहले डिपॉजिट इकट्ठा करना है और उसके साथ साथ में देन यू हैव टू हैव ए काइंड ऑफ ए इनकम मैच करनी चाहिए ना। Exactly. ये दोनों चीज़ें जब तक मैच नहीं करती तो होगा नहीं। तो इसके लिए काफ़ी सारी फैमिलीज को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है कि जो बेचारे कि रेंटल भी इतने ऊपर जा चुके हैं कि दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज फॉर द पीपल। एक तरफ वो डिपॉजिट नहीं जमा कर पा रहे और दूसरी तरफ इनकम नहीं हो पा रही। True. और साथ साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन अप। Exactly. और नो मैटर हाउ मच हार्ड यू वर्क, बट स्टिल it will be difficult for you to get a place to live
your own place. Otherwise, it was going to be wrong. I guess जो common opportunities होती है, जैसे invest into hospitality, invest into real estate, वो पहले के टाइम पे थोड़ा easy था, but अब थोड़ा सा उसमें problem आ रही है. So what do you think कुछ advantages है जो इस टाइम पर लोग आ रहे हैं? Advantages तो ये हैं कि देखिए कि बहुत सारे advantages में सबसे जो मैं देखता हूँ कि acceptance. जो हमारे यहाँ जो नए माइग्रेंट आते हैं, they already have got a base जो कि हम लोगों ने बना दिया है. Right. जब हम लोग आए थे तो नौकरी जो थी, एम्प्लॉयमेंट अगर आपको चाहिए तो it was very hard to get one at that time. तो क्या था कि एक कंसेप्ट था कि हम लोग जो माइग्रेंट हैं कि whether we are having enough qualifications and all those things, यानी कि हमारे पास enough हैं या नहीं. लेकिन थ्रू द टाइम हम लोगों ने उसको अपने आप को प्रूव कर दिया कि जो हम लोग यहाँ पर आके बसे हैं, वी आर नॉट बहुत मामूली लोग नहीं हैं, हम लोग इम्पोर्टेंट लोग हैं. तो हम क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ क्या थी, एक तो जो कम्युनिकेशन वाज नेवर ए प्रॉब्लम, जो कि यहाँ की इंग्लिश जो लैंग्वेज है इट वाज नेवर ए प्रॉब्लम. एंड देन हमारे स्लीव में जो हमारी स्ट्रेंथ थी कि हमारे पास एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वी हैड वेरी गुड पोजीशन बैक होम इन इंडिया. Maybe no matter which part of the world we worked, because a lot of Indians they have migrated to various countries, and वहाँ पर उन्होंने आके प्रूव किया. Same thing we did it here. आज की डेट में देखिए कि we are valued. आज कहते हैं ना कि भाई मैं कई बार ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बोलते हैं तो कहते हैं, ओपनली कहते हैं कि Indians are the family person, Indians are the hard working person, working family person. All these things encourages us. तो ये जो हमने प्लेटफॉर्म एक पाथवे यानी बनाया सेट था कर दिया है, राइट, इन लोगों के लिए जो नए माइग्रेंट्स आए हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं है. दे आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आके सीधे दे आर वैल्यूड, और जहाँ जहाँ पोजीशंस हैं मिलती हैं तो they are getting it. It's very interesting to know. So do you think over the years did you notice a certain change in the perceptions of Kiwis towards Indians कि वो they are more knowledgeable about our cultural values and our जो religion की चीज़ें हैं? Do you think so they are more aware of it now by now? बहुत बड़ी awareness हुई है. मैं आपको बताता हूँ, जब I'm talking about 30 years back की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग आए थे तो we were known as a dairy or small business owners. हमारा काम ये भाई और किसी को ने do you own a dairy, इस तरीके की बात नहीं होती. अच्छा. लेकिन आज की डेट में वो बात नहीं है. We own several businesses. हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर आप देखें तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, and you name a business जिसमें ये लोग नहीं हैं. Exactly, right. तो वो परसेप्शन तो बिल्कुल चेंज हो गया. See guys, truth is out there. The new immigrants have to go through so many problems in the recent times that I guess immigrants who came here 10 years ago don't even know exist. But as Mr. Jeet said, we have such a big advantage where we new immigrants are already accepted in the country. They know we are hardworking. We have been provided with equal opportunities as any other person in the country. So we should definitely embrace that. Obviously, the problems are going to be there always. All you gotta do is work smart, work hard, and be grateful for the things you already have in your life. And I'm sure then your path to success will be way, way easier. So in the next segment, Mr. Jeet is going to tell us why he chose to become a social worker from a successful entrepreneur and what services his support trust offers. And you should definitely watch the next segment if you are planning to get your parents to live with you in New Zealand. As a early settler, जो हम लोग यहाँ पाए, हमारे से पहले लोग जो भी आए, तो मैं अपना रोल ऐसा देखता हूँ कि हमने क्या किया कि हमने आने के बाद ये रियलाइज़ किया यहाँ पर कि भाई जो चीज़ की कमी है वो ये है कि जो हमारे लोग यहाँ पर आते हैं दे आर आइसोलेटेड हैं. उनको ये फील नहीं होता कि हम लोग होम अवे फ्रॉम होम वाली बात है. तो हम लोगों ने क्या किया कि वी केम इन 1987, अर्ली 87. तो 87 से लेके 1995 तक आई डिड लॉट ऑफ बिजनेसेस. काफ़ी बिजनेस हमने किए और काफ़ी सक्सेसफुल रहे. लेकिन ऐसा हुआ कि 1995 में there was a bit of change within me. जो चेंज जब तक आपके अंदर से नहीं होता है तो
यू कैनट कॉल इट ए चेंज। बाहर से हम कैसे भी चेंज करना है, चाहे मैं कहता हूँ कि अभी हम अगर रात को हम सोते हैं तो एक नाइट ड्रेस में सोते हैं, तो बाहर की चेंज करने मॉर्निंग में हमें प्रोफेशनली चेंज करना पड़ता है, हम दूसरे कपड़े पहन लेते हैं वगैरह वगैरह। बट लेकिन जो बेसिक जो चेंज है ना, जो इनसाइड से जब चेंज आता है ना, दैट इज अ लास्टिंग चेंज। एग्जैक्टली, वो टेम्परेरी नहीं होता है। तो मेरे साथ भी वो हुआ कि मैंने ना एज ए बिजनेसमैन के से सडनली आई टर्न टू ए सोशल वर्कर। ये चेंज हुआ भी इस तरीके से, अगर आप जानना वही जानना चाह रहा था। हुआ ये कि 1995 में मेरी सिस्टर है, उनका नाम है रूपा सचदेव, तो वो रेडियो तराना में थी। अच्छा। शी स्टार्टेड हिंदी रेडियो अलॉन्ग विद रॉबर्ट खान के साथ। तो उन्होंने जब वो शुरू किया तो शी यूज्ड टू रन ए टॉक बैक शो। जो टॉक बैक शो रन करती थी तो उसमें लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करती थी। तो उसके उसी दौरान में आई ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन दैट। जब मैं टॉक बैक शो में इन्वॉल्व हुआ, एंड आई थिंक कॉमन सेंस वाली बात है, जो मेरे पास एक्सपीरियंसेस थे वो मैं शेयर करता था आपकी रेडियो के ऊपर। अच्छा। तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई मेरी बातों में थोड़ा सा दम है। सो फॉर दैट रीज़न दे आस्क्ड माय सिस्टर कि भाई जो जीत जो बोलते हैं उनका फ़ोन नंबर दो। देन पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी, एंड हम लोग उनको सॉल्यूशंस वगैरह देने शुरू किए। तो उसके साथ साथ मेरा जो चेंज आया, जो इनर चेंज आया, यही था कि व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ आया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ, मेरा क्या रोल है। इज इट सिर्फ कि पैसा कमाना, फैमिली की को लुक आफ्टर करना, इसके अलावा भी मेरा कोई रोल है या नहीं है। सो बस वो ये चेंज जो इनर चेंज जो आया, तो आई बिकम ए सोशल वर्कर। हम लोगों ने क्या किया, अभी हमारी जो फैमिली है वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। मेरे बच्चों ने, मेरे बहुत ही जो फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, सब ने पूरी सपोर्ट की। आपको मैं ये बताना चाहूँगा जो कि यहाँ जो दिवाली, जो आज आप दिवाली का विशाल रूप देख रहे हैं, बिल्कुल, इट स्टार्टेड बाय अस। वाओ, इट स्टार्टेड, वी वर द फर्स्ट वन। मैं ये नहीं कहता कि दिवाली पहले नहीं होती थी, लोग मनाते थे। आउटर स्क्वायर में जो विशाल रूप से दिवाली हुई, दैट वाज डन बाय अस। वाओ, इन 2001 और 2 की बात बताता हूँ। ओके। Then thereafter we passed on our Diwali to the Auckland Council. Oh, okay. Asia Foundation कुछ ऐसे Right. We passed on to them. तो आज की डेट में आप देखें कि इसका कितना विशाल है। Exactly. एंड बहुत सारी चीज़ें हमने करने के बाद अच्छा। देन अभी हमने सोचा और क्या करना चाहिए, कि देन हमने देखा कि जो हमारे जो माइग्रेंट्स हैं उनके पेरेंट्स आए हैं। जब पेरेंट्स आए हैं तो दे वर वेरी आइसोलेटेड एंड लोनली। भाई उनके लिए क्या करना चाहिए, तो वी क्रिएटेड अ सीनियर सिटीजन ग्रुप। ओके। तो आज की डेट में वो सीनियर सिटीजन ग्रुप इतना पॉपुलर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। Definitely, I saw lots of videos on Facebook. जान लो अंताक्षरी खेल रहे हैं online and doing so many stuff. Yeah, so good to see that. बहुत सारी चीजें मतलब they feel good. सबसे क्या है कि एक म्यूचुअल सपोर्ट है, सोशल सपोर्ट है, एंड देयर इज अ प्लेस वेयर दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड दे नो, दे आर एश्योर्ड कि इफ दे गॉट एन इशू, चाहे वो एल्डर अब्यूज है, चाहे कोई भी है, दे विल बी listened. True. And there will be action taken against those people who they are giving them problems. तो ये सब चीज़ें ना बहुत मायने रखती हैं। Exactly. आज की डेट में वो जितने खुश हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एक पर्सन का बर्थडे होता है तो उनके घर में इतने फोन्स आते हैं कि पूछिए मत। वो बोलते हैं कि हमारा तो कोई, जो बच्चे बोलते हैं हमारे तो कोई फोन कर लेकिन इनके दिन रात इनका ये चलता रहता है। तो कहने का मतलब दैट वाज ए समथिंग फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि भाई हमारे लिए कोई है। सोशल आइसोलेशन नहीं है। दे आर लिविंग ए लाइफ ऑफ कि कैसे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, जिसमें दे आर फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट। उसके अलावा देन हमने सोचा कि जो छोटे बच्चे हैं वो तो हमारे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे हमारे रूट्स के साथ। अच्छा। देन वी स्टार्टेड लैंग्वेज एंड कल्चरल क्लासेस उनके लिए की, एंड उसके अलावा फिर देन हमने जो छोटे जो टॉडलर्स हैं उनके लिए ग्रुप शुरू किया। तो इस तरीके से करते 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 मुझे किसी ने पूछा, भाई
आप कैन यू एक्सप्लेन कि आपकी कौन सी सर्विसेज, आप कौन सी सर्विसेज देते हैं? या एग्जैक्टली, ये तो बहुत बढ़िया बात पूछी आपने मुझसे, लेकिन मुझे तो आपने कंफ्यूज कर दिया होता है कैसे। मैंने कहा मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया कि हम लोग कौन सी सर्विस नहीं देते हैं। तो क्योंकि अगर आप शुरू करें तो मैं अक्सर एक वर्ड यूज करता हूँ, एक लाइन कि वी प्रोवाइड सर्विसेज फ्रॉम 0 एज टू 0 एज। Okay. जीरो एज से That's right. ग्रुप है और 0 एज में एंड में जाके हम सब 0 होने वाले हैं। चाहे तो हमने बोला इसके बीच में जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे वो माइग्रेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, चाहे किसी किस्म की उनको नीड है, किसी प्रकार की नीड है, चाहे हाउसिंग की है या सोशल कोई भी नीड है, वी मीट दैट। हमारा फैमिली वायलेंस ट्रस्ट भी है, सिस्टर एंड रूपा जी, उनके अपना रूपा और आप चैरिटेबल ट्रस्ट है, where we address the family harm and the family violence issues. तो ले दे के इतनी सारी सर्विसेज हैं, कभी कभी मुझे भी सोचना पड़ जाता है कि हम कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं। और एक बहुत चीज़ हमने जो बड़ी अचीव की इस कंट्री में आके हमारे सीनियर्स के लिए, कि हमने देखा कि मैं ना बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉबिस्ट हूँ। मेरे से कुछ चीज़ कोई मैं देख लेता हूँ कि ये इशू है तो मैं तो पीछे पड़ जाता हूँ। अच्छा, बिकॉज प्रॉब्लम्स हैं until unless you find a solution to it। जैसे कि हमारे बुजुर्ग हैं, किसी रीज़न से उनको रेस्ट होम में जाना पड़ता है, केयर होम में जाना पड़ता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर उनको जाके वो खाना जो है वो डिफरेंट किस्म का खाना जो उन्हें कभी ज़िंदगी में नहीं खाया, बिल्कुल खाना खाना पड़ता है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन, वो क्या कह रहे हैं, साइन लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, तो दिखा रहे हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, एक्सप्रेस कैसे करें एग्जैक्टली, और किस तरीके से अपनी बातों को उन तक पहुँचाएं, उनकी नीड्स को जो हैं कैसे दूसरे समझ सकें। तो हमने क्या किया कि हमने एक जब मैं लॉबिंग करता था, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द मेयर ब्राउन, उनके एथनिक पैनल में, मैं एडवाइजरी पैनल में भी आई वाज वन ऑफ द मेंबर, की मेंबर। तो मैं हर जगह लॉबी कर रहा था कि किस तरीके से हम वी शुड हैव ए कल्चरली अप्रोप्रिएट रेस्ट होम की स्थापना हो जाए। तो जब मैं जगह जगह बात करता था, फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद बूपा। हाँ जी, बूपा जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके न्यूजीलैंड अलोन में ही दे हैव गॉट 48 रेस्ट होम्स एंड दे हैव गॉट सो मेनी अदर रिटायरमेंट विलेजेस एंड सो मेनी सर्विसेज। तो क्या हुआ कि उन्होंने हमें फिर अपॉर्चुनिटी दी, एंड वो है मैंगरी में डेविड लॉन्गे केयर होम है। अच्छा, वी स्टार्टेड दैट 5 years ago, ऑलमोस्ट 5 to 6 years होने को आ गए। वी स्टार्टेड दैट एंड बिलीव मी इट वर्क्स सो वेल। इंडियन खाना मिला, इंडियन केयर मिली, और उनकी एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले मिले, एक कंपनी मिली। आप देखिए ना कि एक अगर हमारे भारत में उनका पर्सन है एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द लोकल, हाउ दे विल कम्युनिकेट एग्जैक्टली। तो आज की डेट में वो इकट्ठे बैठ के हिंदी मूवीज देखते हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, एंड आल्सो वी आल्सो गो फ्रॉम टाइम टू टाइम सेलिब्रेट दिवाली देयर, क्रिसमस। Dalai Lama said, a genuine change must come from within the individual. Only then he or she can attempt to make a significant contribution to humanity. And Mr. Jeet is exactly doing the same. Now that you know there are so many free services available for Indians in New Zealand, what's the next segment to know what is the best way to avail these services? आई गेस जो भी इसको देख रहा है, दे आर वेरी इंस्पायर्ड एंड थैंकफुल टू यू कि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। आई थिंक जो सबसे पहला क्वेश्चन इन लोगों के माइंड में आने वाला है वो यही होगा कि हाउ डू दे कॉन्टैक्ट यू, कि अगर ऐसी कोई सर्विस उनको चाहिए या कोई हेल्प चाहिए, हाउ डू दे कॉन्टैक्ट यू, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो कैसे, मतलब उनको ये कैसे सर्विसेज मिल सकती है। देखिए, हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं दे आर ऑल फ्री, चाहे वो फैमिली वायलेंस रिलेटेड है, चाहे हमारे जितने भी हमारी सर्विसेज आप देख रहे हैं, एवरीथिंग इज फ्री फॉर द कम्युनिटी एक्सेप्ट देयर इज अ माइनर डोनेशंस हैं, लाइक समर कैंप हम करते हैं, 5 दिन का समर कैंप करते हैं, वी गेट 100+ चिल्ड्रन, तो उनके लिए जब हम सर्विसेज देते हैं, बाकी तो सब फ्री है, खाली छोटा सा एक ऑनरेरियम जो है अमाउंट हम लेते हैं, जो That's fair enough. Yeah, that's of course. Achha. But apart from that, we have all our services are free. हमारे senior citizens हैं, उनके लिए transport is subsidized. Oh wow. Yeah, subsidized because otherwise they won't be able to come to the meeting.
ठीक है, वो भी हमने सब्सिडाइज की हुई है। उनको हम साल में 2 नाइट्स के लिए और 3 डेज के लिए किसी भी सिटी में लेके जाते हैं। अरे वाह, वी लुक आफ्टर दैट। बहुत मजे ले रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं, मैं आपको बताऊं कि आई रिमेंबर मैं एक घर में रह रहा था जब मैं न्यू आया था, एंड मेरे लैंडलॉर्ड के पेरेंट्स आ रखे थे, बट दे डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग दैट्स गोइंग ऑन। तो वो बोर हो जाते थे। वो क्या करते थे, वो बस हम ऐसे एरिया में रह रहे थे जहाँ इंडियंस भी नहीं थे, तो पूरे दिन सिर्फ टीवी देखते रहते थे। एंड आई यूज्ड टू फील फॉर देम कि कुछ ऐसा होना चाहिए इनके लिए, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि अब ऐसा कुछ है। एंड आई एम श्योर थ्रू दिस वीडियो ऐसी सब लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो दे विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट यू। सो व्हाट्स द बेस्ट वे टू कॉन्टैक्ट यू? जैसे तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है क्रिएट करनी, और ये भी मालूम होना चाहिए कहाँ जाना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नाम है भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट। एंड टू कॉन्टैक्ट मी इट्स वेरी सिंपल, दे कैन कॉल एंड गो टू आवर वेबसाइट व्हिच इज BSCT. आप उसको किसी, I'll put it in the description. दे दीजिए। Sure. And apart from that, give our email and my phone number. And I'm available for my community for 24/7. Sure. So good to hear that. So my sister Rupa is also available for 24/7 to address the family violence issues. So what do you think, अगर कोई ऐसा हो जिसको इसी टाइप का काम करना है, where should he start? अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछ लिया रचित जी मेरे से। क्या है कि ये जो चीज़ें हैं ना, वो एक ऐसा है ना, जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई पौधा लगाना है तो व्हाट यू नीड ए सीड। पहले तो वो सीड जो है वो सीड आपके दिल में वो होना चाहिए। यू हैव टू सो दैट सीड विद इन योरसेल्फ। वो कैसे होता है कि जैसे कि आप मेरे से बात कर रहे हैं एंड आपने मेरी सर्विसेज देखी या भारतीय समाज की सर्विसेज देखी, देन यू विल बी इंस्पायर्ड। अरे इफ जीत कैन डू ऑल दीज थिंग्स एट दिस एज, I cannot. Exactly. This is how we have got the people who are so many volunteers working with Bhartiya Samaj. So many people, they admire Bhartiya Samaj. So many people out there, they support Bhartiya Samaj. They feel कि भाई चलो हम ये नहीं कर सकते तो हम ये कर सकते हैं. There are so many volunteers. They spend their own time and help us. तो ये एक जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि आप कुछ करना चाहते हैं। हमने मालूम नहीं कितने लोगों को फूड पैकेट्स वगैरह दिए, मेडिसिन भी लेके दी। काफ़ी लोग स्ट्रैंडेड हैं यहाँ पर जो कि एज ए टूरिस्ट आए थे, एंड दे कांट रिटर्न टू इंडिया बिकॉज देयर इज नो फ्लाइट्स, एंड बिकॉज कि काफ़ी मजबूर हैं टू स्टे हियर. So what we have done, also we we actually got few families free accommodation. पूरा खाना भी दे रहे हैं वहाँ पर, वो भी सब कुछ फ्री है. तो all these things are happening. ये अगर नहीं हम लोग करें तो कैसे होगा ना कि exactly. And also still I'm talking the New Zealand government how we can place so many other families who they haven't been able to get free accommodation. Right. वही बातचीत चल रही है. Actually, hopefully, we will be able to place many families into that until they return back to India. So good to hear. तो एक मेरा जो मुझे लग रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, बिकॉज यू से कि जो आपके पास लाइक जो फाइनेंशियल फैक्टर है, जब आप ऐसा कुछ करते हो तो यू डोंट हैव दैट मच मनी टू कंडक्ट थिंग्स. यूजली लोग अगर कुछ करते हैं तो दे वांट टू मेक मनी इन रिटर्न, राइट? सो आई मीन कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें यू आर नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, व्हाट इज द मोटिवेशन फैक्टर? मोटिवेशन तो ये है कि मैं जब किसी को दुख में तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि व्हाट आई कैन डू समथिंग टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन दैट पर्सन्स फेस. अभी उसकी नीड हर इंसान की अलग है. किसी को बातों से हम खुश कर सकते हैं, उसको अच्छा फील करा सकते हैं. किसी की एक्चुअल नीड है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं. मेरे पास काफ़ी किस्म के लोग आते हैं, वैरायटी के लोग आते हैं. कोई कहता है कि आप सिर्फ मेरी बात सुनो, and I got a good listening ear. Listen to them. And जो मैं कर सकता हूँ, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, and we do that. हम देखिए कि मैं आपको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि इंडिया में एक पर्सन ने यहाँ एक लड़के से शादी की, यहाँ लेके आया, उसको इंडिया छोड़ के आ गया and she was pregnant. Oh, okay. 7 months और की प्रेग्नेंट थे, उसको इंडिया छोड़ के आ गया.
somehow she contacted us and explained to us she wanted to come back here, but she was returned back from Hong Kong to India, क्योंकि उसके पास उसका जो पार्टनर था उसने उसका वीज़ा विड्रॉ कर लिया था. Oh my God. Yeah, support withdraw कर ली, तो immigration did not allow her to come back. I worked for 2.5 years for that woman to bring her here. I did whatever was required. मैं लंबा नहीं करूँगा बात को. We did everything what was required, and now the girl is here. यहाँ है, उसकी बच्ची भी है यहाँ पर, and हमने यहाँ लाके उसको छोड़ा भी नहीं है. We are still looking after her. We got her whatever is required from the wings से जो उसको चाहिए था, या और किसी किस्म की भी सपोर्ट उसको चाहिए या चाहिए होगी. We are trying to help. There are so many other cases like that. We help people. जैसे यहाँ पर किसी की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में डेथ हो गई, या और किसी प्रकार से कुछ इशू आ गया, तो we transfer the body to India. इस तरीके से there are so many ways to help people. किसी को और कोई किसी को दुख तकलीफ है, फैमिली में प्रॉब्लम है, we mediate. हम लोग एक दूसरे से बात करके समझाते हैं, भाई देखो क्यों झगड़ा करते हो, यहाँ पर आए हो इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में, आप थोड़ी सी एडजस्टमेंट करो. मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूँ कि if you can exercise this simple thing, if you are tolerant and if you are flexible, you can live anywhere in the world and in any situation. Mr. Jeet is such an inspiration. I believe we should also start being more proactive and help others. It could be small help of replying to a query of a person posted in one of the Facebook groups. So in the next segment, we are going to talk about services available for new immigrants. तो मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था कि how भारतीय समाज चैरिटेबल ट्रस्ट help new immigrants. अभी ऐसा है कि हमने तो बाहें खोल के रखी हुई हैं, and we have promoted our services in various ways. वो अपना आप कहें कि चाहे वहाँ पर सोशल मीडिया है, उसमें we are very active, and all the government departments knows us, right? Even all the member of parliaments, even the जैसे hospitals हैं इधर उधर, everyone knows us. तो क्या होता है, किसी को कुछ जरूरत होती है तो immediately वो हमें right. और also we encourage people to contact us कि भाई आपको कोई समस्या है तो भी कांटेक्ट करो, आपकी कोई नीड है तो भी हमें कांटेक्ट करो. We are open for all the कि कोई जो भी हम कर सकते हैं. We are not limiting ourselves कि हम ये करना है या वो करना है. Makes sense. ठीक है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई we try and help, किसी को जॉब की भी हम हेल्प करवा सकते हैं. ठीक है. अभी क्या है कि बात ये आ जाती है कि when they approach us, तो जब हमें अप्रोच करते हैं तो we try and do our best. ठीक है. So that means आपके पास कोई set number of services नहीं है. किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, they can get in touch with you, and obviously you have got a good network, तो आप उनको बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं. ठीक है. Network is our strength. We are I will say open, बहुत proudly कह सकता हूँ कि we are associated and connected with almost all the organizations. That's good. And we are a non-political and non-religious organization. I respect all the religion, and also I practice my own religion जो भी है मेरा. लेकिन at the same time क्या है कि we do not talk about this thing openly कि भाई आप मैं इस रिलीजन से हूँ तो मैं यहाँ नहीं. मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, और चर्च में भी जाता हूँ, और टेम्पल्स में. Sure, this is going to be really inspiring for people and उनके लिए बहुत helpful होने वाला है. So my last question is, what would be your one big advice for all the immigrants around the world? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इस कंट्री में आए, ब्यूटीफुल कंट्री में आए, मेक द बेस्ट ऑफ इट. किसी भी सिचुएशन में ये तो होता नहीं है कि सब आपके लिए ठीक है, पॉजिटिव है, नेगेटिव्स आल्सो. आप कहते हैं, मैं अक्सर यही कहता हूँ कि काउंट द ब्लेसिंग्स ही है ना. यहाँ की आबोहवा कितनी वेदर कितना अच्छा है, यहाँ की रिसोर्सेज कितने अच्छे हैं, क्लीन है, छोटी सी कंट्री है और रिसोर्सेज भी हैं. एंड ओनली थिंग इज कि हैव ए पेशेंस. अगर आज आपको कुछ नहीं मिला, आप वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो. ज़रूरत से ज़्यादा जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं तो हम लोग फेल हो जाते हैं. एक्सपेक्टेशन जो है
आपकी एबिलिटी के साथ मैच करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन आपके अंदर जो चीज़ें हैं, आपको जो अवेलेबल रिसोर्स हैं उसके साथ मैच करनी चाहिए। अगर मेरे पास आज एक्स अमाउंट ऑफ वैल्यू है, मेरे पास पैसे हैं, तो मुझे सोचना चाहिए कि मैं अगर 2 बेडरूम का घर लेके I can be happy, so I should not be straining myself or putting pressure on myself to go for a 5-bedroom house where I can't pay back the mortgage and other things. ये छोटा सा एग्जांपल है। खाली ये कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन को अपने काबू में रखें और शांत रहें, और जो हमारी फैमिली है उसको वैल्यू करें। आज की डेट में हमारा क्या हो गया कि हम डॉलर की चमक को ही देख के अपने हमारे जो क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे हम इख्तिलाफ नहीं करें। मैं अपने यानी कि ये नहीं कहें कि मुझे ये एवरीथिंग इज़ फॉर मी। बैलेंस्ड होना चाहिए। घर में अगर आपने कोई काम भी कर रहे हैं उसमें भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आप दोनों पर्सन काम पे जाते हैं और दोनों पर्सन ही थक के आते हैं। बच्चे भी हैं, उनको भी पालना है, तो आपने शेयर करना है। जब शेयरिंग एंड केयरिंग वाली सिचुएशन में आ जाते हैं तो यू आर द विनर। लेकिन जब आप सेल्फिश होना शुरू कर जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं, तो दैट मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट। तो मैं यही कहूँगा, शांत रहिए और आपके चेहरे की जो शांति है इट विल रिफ्लेक्ट। और अपने दिमाग को शांत रखें। और क्योंकि देखिए इस दुनिया में कोई भी फैमिली का हेड हो, स्टेट का हेड हो, कंट्री का हेड हो, अगर वो हेड कायम नहीं है, शांत नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो इट कैन कॉज डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन दैट सिचुएशन। और मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि अगर एक पत्थर आप लेते हैं, अगर उसको आप जो स्टेडी जो वाटर है उसमें अगर आप फेंकते हैं, तो देखिए कितने सारे रिपल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो एलिमिनेट दोस थिंग्स। सबसे पहली बात यह है कि आप शांत पानी में पत्थर मत फेंकें। डोंट डिस्टर्ब द स्टेबलाइज सिचुएशन। क्रिएट ए सिचुएशन, इतनी हारमोनियस सिचुएशन हो जहाँ पर एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को टॉलरेट करें, छोटी मोटी चीज़ ऊपर हो जाए, इधर उधर हो जाए, फ्लेक्सिबल होके ओवर सी करके कंटिन्यू द जर्नी। मुझे इतना पक्का मालूम है, अगर आप शांत हैं, अगर आप टॉलरेंट हैं, फ्लेक्सिबल हैं, तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आनी ही आनी हैं। आप ढंग से काम भी कर सकेंगे, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। विद दिस नोट मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच कि टाइम हमारे पास आए और हमारी ढेर सारी बातें। No, I'm so thankful for all the wisdom that you have shared with us, and बहुत ही helpful होने वाला है ये इंटरव्यू जो भी लोग इसको देखेंगे। Once again, thank you so much, Jeet. Thank you. God bless you. Alright guys, thank you so much for watching this video. We have some amazing interviews lined up, so make sure you have liked our Facebook page and followed us on Instagram. Also check out rachitkushwaha.com to know more about how you can join immigrants community in New Zealand. And if you're in Auckland, make sure join our Facebook group Indian Auckland Meetup. Thanks again, and I will see you in the next video.